Good morning, students. Today I will tell you about the photosynthesis. So yesterday I told you what is the photosynthesis. It is a process which followed by the plants for making their food in the presence of sunlight. So that is photosynthesis, and there are four components those are necessary for the process of photosynthesis. So which one are here? First one carbohydrate, second one water, third one chlorophyll pigment, and fourth one is sunlight. So these four things are necessary in the process of photosynthesis. Now I will start. Your next point is here, process of photosynthesis. So plants how make their food in the process of photosynthesis. These all things we will study here. So now you will see, first thing is here, leaves are the food factories of plant. What you understood by this line? लीव्स मीन्स जो लीव्स हैं प्लांट की या ट्री की, जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज होती हैं. फूड फैक्ट्री से मीन है एक ऐसी जगह जहां पर फूड का प्रिपरेशन होता है, फूड बनता है. सो वी विल कॉल देम फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. सो फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट कौन होती हैं? लीव्स होती हैं. नेक्स्ट वन, the synthesis of food in plants occurs in leaves. So we know very well chlorophyll is present in the leaves. So food preparation process also will be happen in the leaves. So that is about this line. Now next one line, water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. So those water and minerals are present in the soil. ठीक है, जो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट हैं. वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनको अवशोषित किया जाता है बाय दी रूट्स, जड़ों के थ्रू, एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी लीव्स. और कहाँ पहुंचा दिया जाता है? टू दी लीव्स, यानी पत्तियों तक उस वाटर एंड मिनरल की सप्लाई होती है. नेक्स्ट वन लाइन इज हियर, carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. So carbon dioxide, where it is present? In air. ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है. सो ये जो गैस है वो किसके थ्रू ली जाती है? स्मॉल जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन दी सरफेस ऑफ दी लीव्स. लीव्स का जो सरफेस है वहां पर ये स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. और ये जो पोर्स होते हैं वो किन के थ्रू सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल्स के थ्रू ये सराउंडेड होते हैं. एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इन पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है. So you can understand these all points by this figure. I will tell you about this. So firstly I will tell you that is a tree. Okay, that is a huge tree. And there are many small leaves. बहुत सी leaves जो हैं यहाँ पर present हैं. Branches, fruits, flowers, all things are here. Okay, it is a rough diagram only for make understand to you. So that is a huge tree. Now you will see these are roots, and roots are present inside the soil. So we know very well in the soil there are water, H2O, and minerals. These all things are present here. कौन कौन सी चीजें हैं सॉइल में? वाटर है एंड मिनरल्स हैं. सो रूट्स विल एब्जॉर्ब दीज वाटर एंड मिनरल्स. ये इसको एब्जॉर्ब करेंगी एंड वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट और ट्री. तो ये कहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा? लीव्स तक. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पहुंचा दिए गए हैं? लीव्स तक पहुंचा दिए गए हैं. सो दैट इज अबाउट दी water and minerals. So that is first component. Now you will see about the CO2. So we know very well CO2 is a gas and it is present in air.
एयर, सो प्लांट क्या करेगा, इस गैस को एयर से एब्जॉर्व करेगा। तो अब ये एयर से कैसे एब्जॉर्व करेगा, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर होनी चाहिए। सो वी विल सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, सो दैट इज अ लीफ। I told you on the surface of leaf there are tiny pores। ये बेटा इतने बड़े नहीं होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इन पोर्स को देख सकते हैं। बट आई एम शोइंग यू बाय दिस फिगर कि किस तरह से स्टोमेटा जो है लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर टाइनी पोर्स, दोज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। अब इनका वर्क क्या है, ये जो स्टोमेटा है स्मॉल पोर्स हैं और ये पोर्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो CO2 गैस है उसको इनसाइड में एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 गैस को ये लोग क्या कर रहे हैं, इन पोर्स के थ्रू, ये जो लीव्स हैं इन पोर्स के थ्रू अपनी इनसाइड में इनको एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। तो CO2 क्या हो गया, इनसाइड में आ चुका है, प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनके इनसाइड में आ चुका है। वाटर एंड मिनरल्स भी लीव्स तक पहुंच चुकी हैं, 2 कंपोनेंट्स पहुंच चुके हैं। नाउ थर्ड वन इज क्लोरोफिल पिगमेंट। सो वी नो वेरी वेल क्लोरोफिल पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन लीव्स, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट कलर ऑफ लीव्स आर ग्रीन। ठीक है, इसी पिगमेंट की वजह से क्या होता है, लीव्स का कलर ग्रीन होता है। सो थर्ड वन कंपोनेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी लीव्स, सो दैट इज क्लोरोफिल। नाउ फोर्थ वन सनलाइट। So we know very well the ultimate source of light is sun। कौन है हमारे अर्थ पर जो कि हमेशा हमें लाइट प्रोवाइड करवाता है, that is sun। So sunlight also can fall on the leaves। So all 4 components complete here। First one CO2, CO2 plants will take through the tiny pores, those are present on the surface of the leaves। We will call them स्टोमेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना इनको स्टोमेटा कहा जाता है। सो प्लांट्स विल टेक CO2 इनसाइड थ्रू द स्टोमेटा। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटेड हियर। नाउ सेकंड वन इज वाटर एंड मिनरल्स। सो प्लांट्स रूट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट्स। So that is second component, या second requirement of the plant. Now third one is here chlorophyll. So chlorophyll already present in the leaves. And fourth one is sunlight. So sunlight plants will take from the sun. So these all requirements are completed here. Now you will see next one line is here, figure 1.2. So in this, after writing these all lines, you have to make your figure 1.2. So what is figure 1.2? You will see here, that one is figure 1.2. So you can see, in this you have to make these all 3 figures. Firstly, that is leaf, and on the surface of leaf there are tiny pores and we will call them stomata. So that is stomata. So beta, you will see here what is the structure of stomata. Firstly, that is stomatal opening। इस तरह से एक ओपनिंग होती है, एक छोटा सा होल होता है, that is stomatal opening we will call this। And this one opening is surrounded by guard cells। इस तरह की cells होती हैं और उन गार्ड सेल्स से ये क्या होती है, चारों ओर से घिरी हुई होती है। सो वी विल कॉल दीज सेल्स गार्ड सेल्स। इस तरह से इसके चारों तरफ क्या होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। दीज आर गार्ड सेल्स। सो यू हैव टू मेक दिस वन फिगर ऑल्सो। इस तरह से आपको स्टोमेटा का जो फिगर है उसकी फॉर्मेशन करनी है। एंड दिस वन स्टोमेटल ओपनिंग, यही वो जगह होती है जहाँ से गैसेस जो हैं इनसाइड में आती हैं एंड बाहर की तरफ किसी भी गैस को सिक्रेट किया जाता है। यानी हमें पता है कि बाहर कौन सी गैस ये लोग प्लांट्स जो हैं वो सिक्रेट करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन। सो
ऑक्सीजन को बाहर निकालना एंड CO2 को अंदर लेना, ये दोनों प्रोसेस ही कहाँ से होती है, स्टोमेटल ओपनिंग से होती है। इन्हीं के थ्रू ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। अब ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्या होता है कि जब प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो दे विल यूज सम वाटर इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, जो भी इनकी फंक्शंस की प्रोसेस होती हैं उन सभी फंक्शंस की प्रोसेस में ये वाटर को यूज करते हैं। बट एक्सेस रिमेनिंग वाटर जो कि ज्यादा है और काम में नहीं ले रहे हैं प्लांट्स, उनको प्लांट्स क्या करते हैं, इसी स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू अपने लीव से बाहर की ओर निकाल देते हैं। और यही रीजन होता है कि प्लांट्स या ट्रीज के नीचे जब हम खड़े होते हैं, जो बड़े ट्री हैं उनके नीचे जब हम खड़े होते हैं तो हमें वहाँ ठंड फील होती है। इसके पीछे रीज़न यही है कि जो ट्री है वो रेगुलरली ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ ठंड फील होती है। सो दैट इज अबाउट दी स्टोमेटा कि स्टोमेटा जो है स्मॉल पोर्स हैं जो कि लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, जिसमें एक स्टोमेटल ओपनिंग होती है, गार्ड सेल्स होती हैं। यही गार्ड सेल्स जो हैं इस स्टोमेटल ओपनिंग को ओपन एंड क्लोज करने का वर्क करती हैं। ठीक है, यानी डे टाइम में तो क्या होता है, ये इसको ओपन करती हैं, गार्ड सेल्स इनको ओपन करती हैं, नाइट में ये स्टोमेटल ओपनिंग्स को क्लोज करती हैं। तो इस तरह से गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज का वर्क करती हैं, इसीलिए इनको गार्ड बोला जाता है। आपको पता है जो भी हमारे यहाँ किसी फैक्ट्री या फिर किसी भी घर के बाहर गार्ड रखे जाते हैं, उनका वर्क क्या होता है, डोर ओपन एंड क्लोज करना। तो सेम ऐसे ही ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इनका वर्क क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग को ओपन एंड क्लोज करना। एंड स्टोमेटल ओपनिंग का वर्क क्या होता है, CO2 को इनसाइड में लेना, O2 को बाहर निकालना एंड एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी ये बाहर निकालता है। सो दैट इज अबाउट दी स्टोमेटा। So leaf figure you have to make in this. After leaf figure you will make this stomata and that is the internal section of a leaf. कि कोई भी leaf का जब हम एक थिन स्लाइस कट करते हैं और थिन स्लाइस को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो उसका फिगर कुछ इस तरह का नजर आता है। तो दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपको, ये तो हो गया लेयर्स हो गई, इनर लेयर हो गई, आउटर लेयर हो गई। सो एंड दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट है। एंड क्लोरोप्लास्ट में ये जो स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, क्लोरोफिल होती हैं। ठीक है, दीज आर क्लोरोफिल एंड दीज वन स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में ही कौन होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। एंड दीज आर स्टोमेटा। ये जो पोर्स हमें नजर आ रहे हैं ये पोर्स हो गए स्टोमेटा। एंड पोर्स के पास की जो सेल्स होती हैं दीज आर गार्ड सेल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स बोलेंगे। तो दैट इज inner section of a leaf. So these all three figures you will make in this topic. Now next thing is here. Next point, the leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. So we know very well leaves में कौन सा green pigment होता है, chlorophyll. बेटा ये green pigment है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, leaves green होती हैं. So that is present in leaves. Name of that chlorophyll. And what is the work of chlorophyll? It helps leaves to capture the energy of the sunlight. So chlorophyll का वर्क क्या होता है, ये leaves को हेल्प करता है जो सनलाइट है उसकी जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में। यानी क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, उसको पकड़ता है एंड उस सनलाइट का यूज वो एज ए एनर्जी अपनी प्रोसेस में करता है. सो दैट इज अबाउट दिस. Now next one thing you will see here related to photosynthesis, 2 or 3 points more are here. So you will see here this energy is used to synthesis food from CO2 and water. So those energy plants will take from the sun. What is the work of that energy?
इट विल सिंथेसिस फूड। जो सनलाइट है वो क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी फूड को। किन से, जो CO2 है एंड जो वाटर है उनकी हेल्प से वो फूड सिंथेसिस करेगी। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, so we know very well the preparation of the food will happen in the presence of sunlight. That is, we will call them photosynthesis. इसीलिए उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, photosynthesis। क्यों कहा जाएगा photosynthesis? Because this process occurs in the presence of sunlight. sunlight की presence में हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, photosynthesis. So we will divide this photosynthesis in two parts. First one is photo. Photo means light and synthesis means to combine. यानी light की help से जो भी components है उनको combine करके और food का preparation करना, that is photosynthesis. Next one is here oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. So ऑक्सीजन जो कि सभी एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एज अ सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदा रहने के लिए वो ऑक्सीजन को ब्रीदिंग की प्रोसेस में यूज करते हैं। तो वही ऑक्सीजन कौन सी प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस की ही वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन है जो रिलीज होती है। सो इन दिस यू हैव टू मेक दिस वन फिगर एंड नेम ऑफ दिस फिगर figure 1.3. So you may see here in this figure that is a plant, and this plant leaves are taking carbon dioxide from the atmosphere, water and minerals through the roots, and chlorophyll already present inside the leaf, and this sun providing here sunlight. So these all components are completed here. Because the presence of these all components, plants will make their food self. So that process is photosynthesis. Now remaining tomorrow I will teach you. Bye and take care.